Our friends, मैं डॉक्टर शुश्रुत अलमज, आई एम MBBS MD in radio diagnosis, and I am the founder of NGO Sukhi Sansar, which was formed in 2010. Almost 16 years now we have completed, which concentrates on holistically healthy India. And my father was a surgeon, mother was a gynecologist. So Sukhi Sansar जो है, because of them they wanted me to do work on holistically healthy India, and therefore this NGO was established. And holistically healthy India, we cover physical health, mental health, social health, spiritual health, financial health, preventive health, integrated health. Integrated means we have Ayurveda, homeopathy, Unani, acupuncture, along with modern medicine. So we cover all the topics concerned that in this system, so that all the healthcare systems are taken care of, and we combine them to get the best results of health. So I really congratulate you people who have organized this seminar on sleep, which is a burning health topic apart from obesity. So one topic is obesity in today's, which is a lifestyle disease, along with it the sleep disturbances, and I congratulate the organizers as well as all the delegates for organizing such a important seminar on sleep. And I also congratulate my dear friend Raj Sukhwani ji, who is a pioneer. So when he started doing these sleep studies and working on sleep and sleep apnea problems, at that time nobody thought that sleep would come up to be such a big problem. And sleep is today called as the mother of all diseases. अब देखिए कोई भी every disease, whether it is related to eyes, cataract, or heart, or lungs, or kidney, or liver, any organ, any disease is somewhere somehow related to sleep problems. Now sleep problems जो हैं वो arise हो सकती हैं due to mental issues, psychiatric issues. Sleep problems can be due to neurological certain diseases. Sleep problems can be due to ENT, some blockade of the system, and which may lead to sleep apnea, and some pulmonary causes also. So there are a number of factors which may lead to sleep problem. And the biggest issue about sleep problems is that as it affects so many parts of the organs of the body, it remains undiagnosed. अब आप हार्ट अटैक की देख लीजिए, जिन लोगों को एंजाइना होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, देयर इज ए स्टडी कि 60 to 80% जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है वो उनको स्लीप एपनिया, माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर स्लीप एपनिया होती है. और स्लीप एपनिया किसको हो सकता है? स्लीप एपनिया बेसिकली या तो कोई स्नोरिंग होती हो, या आपको दिन में बैठे बैठे नींद आती हो, रात भर आप सोए हो और दिन में भी नींद आ रही है, स्नोरिंग हो रही है. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको लगता है आप नॉर्मल सोए हो और आपकी नॉर्मल स्लीप रही है, उसके बावजूद आपको स्लीप एपनिया हो सकता है. जो कि कई बार, जैसे मैंने कहा कि जब आप एंजाइना, हार्ट की प्रॉब्लम से कहीं जाते हो डॉक्टर को दिखाने, तो अब पता चलता है कि भी आपका स्लीप एपनिया टेस्ट होता है और आपको तो स्लीप एपनिया है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब कार्डियोलॉजिस्ट इस चीज़ को देखे कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स है, आपको एंजाइना प्रॉब्लम है, आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, तो क्या आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि सारा कुछ जो है वो ऑक्सीजन से रिलेटेड है. आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो 95% से ज़्यादा होना चाहिए, और आपको अगर स्लीप प्रॉब्लम है, आपको नींद के टाइम में आप सो रहे हो, आप सोच रहे हो आप नॉर्मल सो रहे हो, और उस टाइम में आपका जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन बिकॉज ऑफ द स्लीप एपनिया, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन समवेयर, और नॉर्मल फ्लो ऑक्सीजन का, एयर का नहीं होता है, तो आपका 80 से भी नीचे चला जाता है. अब जब वो स्लीप एपनिया होता है तो वो सब ऑर्गन्स में जाता है. मैं आपको अपना एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा. मेरे को 2007 में कार्डियक स्टेंट लगा. मेरे को कभी किसी ने, डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने ये नहीं बोला कि आप अपना स्लीप एपनिया टेस्ट कराओ. शायद उस टाइम बोल देते और मेरा डिटेक्ट हो जाता कि बचपन से मेरे को
डेविएटेड नेजल सेप्टम मेरा जो है उसकी वजह से मेरे को ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो शायद मुझे कार्डियक प्रॉब्लम्स ही ना होती। और फिर मेरे को 2025 में 25 में मेरे को ये स्टेंट्स 3-4 कार्डियक स्टेंट लगे, मेरा एंजाइना और हार्टिक प्रॉब्लम बढ़ी। उस दौरान मेरे को जब स्लीप प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने ENT फ्रेंड डॉक्टर पराशर से मिला और फिर उन्होंने मुझे राज सुखवानी जी से मिलाया, मेरा स्लीप टेस्ट करा उन्होंने, उसमें पता चला मॉडरेट स्लीप एपनिया है। फिर मैंने CPAP यूज़ करना शुरू करा और उनकी जो हेल्थ शील्ड कुछ उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ केयर जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उसको भी मैंने यूज़ करा। और आपको मैं बताऊं, मेरे कैटरैक्ट की इतना था कि भाई सोच रहे थे कि कैटरैक्ट सर्जरी कराएं, वो मेरा बेटर हो गया। मेरे लीवर के जो फैटी लीवर है वो इम्प्रूव हो गया बिकॉज मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटर हुआ। ऑक्सीजन लेवल जो मेरा 80-85 के आसपास रहता था सोते टाइम, वो मेरा 95% से ऊपर जब आया तो मेरा जो है लीवर, फैटी लीवर में इम्प्रूवमेंट आई। मेरा पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो अमाइलेज लाइपेज हाई लेवल पे थे वो मेरे नॉर्मल लेवल पे आ गए। मतलब हर लेवल पे एडवांटेजेस हुए बिकॉज जब आपको स्लीप प्रॉब्लम्स है, जब आपको स्लीप एपनिया है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन जाता है और ऑक्सीजन तो हर ऑर्गन को चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए, हार्ट को भी चाहिए, आपके लीवर को, पैंक्रियाज को, सबको और ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्लीप के टाइम में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नींद में कितना है और आपको स्लीप एपनिया है या नहीं है। तो बहुत जब भी स्नोरिंग हो, दिन में नींद आती हो, कोई हार्ट इश्यूज़ डेवलप हो रहे हो, ऐसे कई कंडीशंस हैं जो इंडिकेट करती है कि आपको अपना स्लीप एपनिया टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और मैं आपको इस संदर्भ में बताऊंगा कि मेरे फादर जो कि सर्जन थे, एलोपैथिक सर्जन थे, 1960s 70s 80s में नंबर 1 सर्जन थे वो दिल्ली में, डॉक्टर संसार चंद अलमस, जिनके नाम पे मैंने सुखी संसार ट्रस्ट भी रखा। वो उस ज़माने में इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ यूज़ करा करते थे, हालांकि सर्जन थे, पर वो पहले किसी भी सर्जरी से एलोपैथी यूज़ करने से पहले वो आयुर्वेदा और अपना होम्योपैथी और हर्बल मेडिसिन्स ट्राई करते थे और 25-30% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ठीक हो जाते थे। जो ठीक नहीं होते थे उनमें फिर हर्निया है, हाइड्रोसील है, पाइल्स है, फिर वो सर्जरी करते थे। तो बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, हर्बल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं और एलोपैथी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सब जितनी भी पैथीज़ हैं, हमारी जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, उनको मिलकर आपस में काम करना चाहिए। एक मैं इसमें और आपको रेफरेंस देना चाहूँगा कि एक स्वामी शिवानंद जी की किताब है हाउ टू हैव अ साउंड स्लीप। स्वामी शिवानंद डॉक्टर थे, उस ज़माने में MBBS लेवल की जो डिग्री थी उन्होंने प्रैक्टिस करी, फिर बाद में वो साधु संत बन गए। तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और साइंस को, उनके जितने भी एरियाज ऑफ फील्ड रहे, उन्होंने कंबाइन करा। उनकी किताब आप ज़रूर पढ़िए, हाउ टू हैव अ साउंड स्लीप बाय स्वामी शिवानंदा जी। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे सिंपल मेथड दिए हैं जिनसे आपको नींद अच्छी आ सकती है। जैसे कि सोने से पहले अगर आप गर्म पानी में 10 मिनट के लिए पैर अपना रखें तो ब्लड सप्लाई जो है आपकी ब्रेन से ऑक्सीजन सप्लाई कम जाती है, आपको नींद आ जाती है। या आप अगर गर्म चीज़ चाय पी लें या कोई गर्म चीज़ ले लें, उससे आपको जब गर्म हॉट वाटर ले लें तो उससे आपको भी हेल्प मिलती है सोने में। तो उन्होंने बहुत अच्छे सिंपल मेथड बताए हैं। एक मोनोसिलेबल साउंड का उन्होंने लिखा है कि आप सोते टाइम अगर ओम का उच्चारण करें, सिर्फ ओम, एक ही साउंड बार बार रिपीट होता रहे। जैसे आपको ध्यान हो, जब हम पहले सोते थे तो हमारा जो पंखा होता था वो एक आवाज़ करता था, चैं चैं चैं, एक पर्टिकुलर आवाज़, और वो कॉन्स्टेंटली वो सिलेबल और उनको आदत हो गई थी उस आवाज़ में सोने की। तो उन्होंने बड़े सिंपल मेथड्स बताए हैं जिससे कि आपको एक साउंड स्लीप आ सकती है। वो किताब आप ज़रूर पढ़ें। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ इस स्लीप के ऊपर सेमिनार रखने के लिए, बोथ ऑर्गेनाइजर्स के लिए और डेलीगेट्स जिन्होंने अटेंड करा है। थैंक यू वेरी मच।